Hello aspirants, welcome to the channel Your UPSC Notes. How are you all doing? Hope you're good. Let me know in the comment section how you all doing. As you all know, on this channel I share with you all my own handwritten notes so that you get an idea as to how you can make short and crisp and meaningful notes on different subjects जो कि both prelims and mains examination में आपको help करेगा. अगर आप मेरे नोट से गाइडेंस लेकर अपने नोट्स बनाते हैं तो लास्ट मोमेंट पर इसको रिवाइज एंड मेमोराइज करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए. ऑल्सो अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई नोट्स बनाना है या नहीं समझ आ रहा है कैसे बनाएं, देन ऑल्सो यू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट ऑन दैट एज वेल. सो बिफोर delaying any further, let's start. And today's topic is preamble. I'm sharing my preamble notes with you all today. So as you can see how I have made notes. Preamble, सारी बुक्स में जो भी पॉलिटी की बुक्स है, लक्ष्मीकांत, the way it has been given, कभी कभी preamble में ज़्यादा content तो नहीं है, like number of pages नहीं है, but the content itself is, it's a intricately related to each other. It is very confusing. You might get confused when you get the question in prelims, because see, for example, they will ask justice, what kind of justice, तो आपको status भी दे देगा. You might get confused. हाँ भाई, status और opportunity में तो justice होनी चाहिए. ऐसे छोटी छोटी ऐसे ट्विस्ट करके यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर देता है, स्पेशली प्रीलिम्स में. देन you just make mistake. But if you make your notes like this, see how I have made. दो चीजें हैं प्रीलिम्स में, प्रीएम्बल में दो चीजें हैं. एक है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, दूसरा ऑब्जेक्टिव. ऑलराइट, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये दो चीजें, अब इसको लिखनी कैसी, अगर आप इस तरह से नोट बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी कभी नहीं भूलेगा. इट विल बी इजी टू रिवाइज, इजी टू कीप इन द माइंड. आपको अगर कुछ भी वर्ड नहीं याद रहेंगे, जस्ट इमेज आपके माइंड में रहेगा, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रीएम्बल करेक्टली. सो व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट? ट्रिपल SDP. Very easy to remember. Triple SDP. What is triple SDP? Sovereign, socialist, secular, democratic, republic. So हमारे जो इंडिया है, जो नेशन है, उसका नेचर क्या है? सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. ट्रिपल SDP. This is the one point which is mentioned in the preamble, nature of Indian state. Now the second point is objective of the constitution. क्या है? So there are 4 objectives that Indian constitution has. First, justice. Second, liberty. Third, equality. Fourth, fraternity. Alright? ऐसे ही लिखिए, ऐसे ही याद करिए, कभी नहीं बोलेंगे आप. Justice, liberty, equality and fraternity. JLEF. These are four objectives. Now 4 objectives में अब justice of what? हम सभी सिटीजन हैं, हमें तो ये चीज जरूर पता होनी चाहिए. Each and every citizen of this nation should know this. Justice of what? Justice आपको किस तरह की चाहिए? तो सोशल जस्टिस होनी चाहिए. Isn't it fair? सही है ना? सोशल जस्टिस तो होनी चाहिए. इकोनॉमिक जस्टिस होनी चाहिए. वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर एनी नेशन टू ग्रो एंड डेवलप. इकोनॉमिक जस्टिस इज वेरी मच एसेंशियल. एंड देन पॉलिटिकल जस्टिस. तो किस तरह की जस्टिस? 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस क्या है? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिक. SEP. यू कैन रिमेंबर इज SEP. सो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस होनी चाहिए. लिबर्टी किस चीज की होनी चाहिए? If you don't have liberty, even if you have all these rights and equality and everything, if you don't have liberty, you will not be able to exercise any of this. Please keep this in your mind. Liberty will lead you, it will help you, facilitate you to exercise all these other rights or the objectives which is mentioned in the constitution and given it to you through fundamental rights. So liberty of thought. आपको सोचने समझने की आजादी तो होनी चाहिए. एक्सप्रेशन, यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ, व्हाट यू फील, व्हाट यू थिंक इज राइट. बिलीव,
लिबर्टी ऑफ बिलीफ, आप जिसमें भी विश्वास करना चाहे, वॉट एवर फेथ और रिलीजन, वॉट एवर यू बिलीव, you have you know you as an individual, as a citizen, you are fully conscious, capable person. You have the right and liberty to have faith, belief, expression and worship. All right, so liberty अब यहाँ मैंने लिख दिया है EBFW, expression, belief, faith and worship and of thought. So इसकी लिबर्टी होनी चाहिए. एंड इक्वालिटी क्या होनी चाहिए? SO, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. ऑलराइट, अब यहाँ पे इक्वालिटी में अब कंफ्यूज करेगा यूपीएससी, इक्वालिटी ऑफ यहाँ पे सोशल डाल देगा. तो ये बहुत ही इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट, इट्स फेयर कि आपके पास सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए. आप ना, अगर आप उसको सही करके आएंगे तो रैशनली यू आर थिंकिंग इट इज करेक्ट एंड इट इज करेक्ट, बट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, प्रियम्बल में ऐसा मेंशन नहीं है, तो वहां गलत हो जाएगा. तो सही और गलत जो प्रीलिम में होता है वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव होता है, नॉट सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिवली इट इज करेक्ट. इफ यू राइट सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, इट इज सब्जेक्टिवली इट इज करेक्ट, बट ऑब्जेक्टिवली इट विल बी wrong. Your answer, you will not fetch a mark. So आपको इक्वालिटी में दो ही चीज याद रखनी है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, SO. Now the fourth point, the fourth objective of the constitution is fraternity. Fraternity में क्या है? I have written DI means dignity of the individual, and D for dignity of the individual and I for integrity of the nation. Alright, सो फ्रेटर्निटी में क्या, दो चीज इंश्योर करनी, अश्योरिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. पहले तो एक इंडिविजुअल से नेशन बनता है, राइट, ना कि नेशन पहले बनता है फिर इंडिविजुअल होते हैं. तो इंडिविजुअल, ईच इंडिविजुअल शुड हैव अ डिग्निटी, अ डिग्निफाइड लाइफ. ऑलराइट, एंड देन वो सारे इंडिविजुअल, दे शुड बी इंटीग्रेटेड, दे शुड बी यूनाइटेड, नॉट फाइटिंग विथ ईच अदर, नॉट हैविंग कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर. सो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, देन दे विल मेक एन इंटीग्रेटेड एंड यूनाइटेड नेशन. सो फ्रेटर्निटी में क्या है? अश्योरिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, DI. तो ये आपको इस तरह से याद रखना है. देखिए यहीं पे मैंने लिख लिया है, आई हैव रिटन इट हियर ओनली. क्या आपने पढ़ ही लिया होगा? ये मैंने यहाँ पे जो पिंक हाईलाइटेड किया है, वाई? बिकॉज दिस वॉज एडेड, द टर्म सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, these three terms were not in original constitution of the India. They were added through the 42nd Amendment Act 1976. All right. तो इस this preamble is entirely complete. Preamble is entirely complete because I have added the amendments also. जो amendments हैं वो भी मैंने यहीं पे लिख लिया है. तो that's how you have to make your notes. That's how you have to make your notes. कि आपने पूरा नेचर लिख लिया, ऑब्जेक्टिव्स लिख लिया, सब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो लिख लिया, एंड हियर इटसेल्फ यू हैव डिफाइन कि कोई चेंजेस हुए क्या प्रियम्बल में. तो चेंजेस क्या हुए हैं? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 3 टर्म्स वर एडेड, एंड आपने हाईलाइट कर लिया. अब आप हाईलाइट कर लेंगे ना, इसको आपको अलग से याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि ओके क्या कौन सा वो टर्म था जो ऐड किया गया था, बिकॉज इट जस्ट any color, if you highlight with any color, it will just pop up in your brain the image and you will not make a mistake. यहाँ पे देखिए 42nd Amendment Act भी लिख दिया है. कभी कभी आपको ये तीनों दे देगा और पूछेगा which amendment act or was it originally there, so you need to know. This is complete preamble. So that's how I have made my notes. और इसी तरह आपको भी बनाना है, कहानी नहीं लिखनी है. बी शॉर्ट एंड क्रिस्प, बी प्रेजेंटेबल. और इससे आपको ये भी आइडिया लग रहा है कि आपको मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करनी है. ऑलराइट, मेंस में आपको अपने आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करना है, सो दैट यू गेट अ गुड मार्क्स, एंड वो इजीली बिना पढ़े जस्ट जो एग्जामिनर है वो ग्रास्प कर ले कि दैट यू हैव कवर्ड ऑल दी पॉइंट्स. सो दिस इज ऑल फॉर दिस नोट. इसका मैं एक पिक्चर भी एंड में लगा दूंगी, सो दैट अगर आपको नोट्स बनाने हैं उस तरह से आप देख के बना सकते हो. एंड
this is all for this video. We'll see you in the next video. Before signing off, I would really request you all to please like, share and subscribe this channel. Like now, subscribe now. Time waste nahi karo, because you know आपका बिल्कुल time नहीं लगेगा hitting a like and subscribe button, and but one like of yours, it will help this video, these kind of videos, all the notes videos will reach out to as many students as possible, because YouTube algorithm help करता है to make these videos available to whoever needs this, who all are into the journey of this UPSC. और बहुत सारे बच्चे हैं, फ्रेशर्स भी आते हैं, बहुत सारे लोग तो कई सालों से प्रिपेयर करते हैं, दे स्टिल डोंट नो हाउ टू मेक नोट्स. तो एक गाइडेंस मिलेगी, आइडिया मिलेगा. वी आर हियर टू हेल्प ईच अदर, so let us help each other by liking, sharing and subscribing this channel. Thank you. See you in the next video. Bye bye. Love you all.